شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی قابل قدر سامعین محترم، خطباء عظام، علماء کرام، سب سے پہلے میں اس گروپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے گفتگو کا موقع فراہم کیا اور اس میں ذریعہ بنے میرے عزیز ضیاء الرحمن گجر صاحب اور جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان کے ہمارے معروف عالم دین اور وہاں کے جو اس گروپ کے ایڈمن ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس وقت چند ایک گزارشات موجودہ قومی ملکی حالات کے تناظر میں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، واعظ و خطابت کا میدان یہ نبوت کی وراثت ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہر نبی دین کا داعی تھے، مبلغ تھے، اور انہوں نے انسانیت کو تبلیغ کی ہے، اور اللہ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی تھی، اور تبلیغ کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے یہ کلام الہی ہے کہ رب نے اس کتاب میں اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے، کبھی یا ایھا الناس کہہ کر، کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، تو گویا اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو بھی اور پوری انسانیت کو بھی متوجہ کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہی خطابت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس پر مستقل ایک کورس بھی پڑھایا کرتا ہوں، جو ساتھی اس حوالے سے میرے پاس آئے ہیں وہ اس کو خوب جانتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بات کرنا مقصود نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم جس آزمائش میں ہیں اور کرونا وبا کی اس تکلیف میں پوری انسانیت الجھی ہوئی ہے، اور امت مسلمہ خاص طور پر، اور پھر ہمارے مدارس، مساجد، دینی ادارے، ہم سب لوگ جتنے پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور کرے، سب کو اپنی امان اور حفاظت اور اپنا اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب نصیب فرمائے، امان اور حفاظت عطا کرے۔ اس سلسلے میں میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس وقت ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ آج تک جو لوگ ایمان بالغیب کے قائل نہیں تھے اور بن دیکھے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، آج اس کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اللہ کی عظمت اور کبریائی اور شخصیت اور اللہ کا تقدس اور اس کی ذات منوائی کہ اس کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی کبریائی والی ہے، کتنے تقدس والی ہے۔ آج بن دیکھے تم نے ایک وبا کو مانا ہے، بن دیکھے نبیوں کی زبان سے، اس وحدہ لا شریک لم یزل لا یزال، بے مثل و بے مثال، اس رب العلا کو مان لو جو زمین و آسمان اور نظام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ سب سے اہم پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اس کی ذات کو ماننا اور اس پر یقین رکھنا۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ سب کچھ منوا سکتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے بڑی بیہودہ باتیں کی تھیں، اس وقت ایک غلط نعرہ بھی چلا تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ آج ہم میں سے کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی، ایک اللہ کی مرضی ہے۔ پوری کی پوری انسانیت مقید ہو کر اپنے حصار میں، چار دیواریوں میں، اپنے گھروں میں
अपने कारोबार, अपने मामलात, अपने इंतजामात सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए हैं। कोई वो ज़ात है और वही एक अल्लाह है जो ये सब कुछ करता है। जब तक हम उसकी अमान में नहीं आएंगे, उसकी हिफाजत में नहीं आएंगे और उसकी गुलाबी में नहीं आएंगे, उसके गुलाम और बंदे नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हम इस आफत और मुसीबत से नहीं बच सकते। दूसरी गुजारिश ये है कि कोरोना के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का हमें महकमा सेहत, गवर्नमेंट, हर मुल्क की और इसी तरीके से डॉक्टर, अतिबा, हुक्मा जितने उसूल बताते हैं उन सबको अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूँगा कि इसको आप और हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दीनी नुक्ता निगाह से लोगों को ये बात समझाएं। मिसाल के तौर पर आज हमें कहा जाता है कि कोरोना से बचने का एक तरीका ये है कि आदमी सुबह शाम हाथ धोए और हर वक्त अपने हाथ साफ करता रहे, धोता रहे। अगर हम शरीयत मुताहरा पर गौर करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह को जब उठो तो उस वक्त तक बर्तन में हाथ न डाला करो, पानी में हाथ न डाला करो, किसी चीज़ में हाथ न डालो, हत्ता कि अपने हाथों को 3 मरतबा जब तक धो न लो। सुबह से लेकर शाम तक अगर हम गौर करें तो मेरा ख्याल यह है कि 15-20 दफ़ा हर आदमी रोज़ाना हाथ धोता है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत है। मिसाल के तौर पर कि सुबह हम उठते हैं, हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, हाथ धोते हैं, जब क़ज़ाए हाजत और तभी ज़रूरत के लिए जाएं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उस वक्त भी जाते आते हमें हाथ धोना पड़ते हैं। खाना खाते हैं या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, शुरू में भी हाथ धोने का हुक्म है, आखिर में भी हाथ धोने का हुक्म है। तो अगर हम ये अपनी ज़िंदगी के मामूलात में इसको कोरोना वबा से बचना तो अपनी जगह पर है, अगर इस अमल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर करना शुरू करते हैं, जो सुन्नत आज हम छोड़ चुके थे, उसकी जगह टिश्यू पेपर इस्तेमाल होते थे और लोग उन पर एतमाद करते थे। हमारे पढ़े लिखे लोगों और दीनदार और मजहबी लोगों के दस्तरखानों पर भी टिश्यू पेपर ही रखे जाते थे, उसी से हाथ मुंह पूंज लेते थे और इत्मीनान से बैठ जाते थे। और अगर आज हम अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करना शुरू कर दें तो रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत से अल्लाह हमें इतनी बड़ी मुसीबत से अपनी अमान और हिफाजत अता फरमाएंगे। दूसरा अहम पहलू ये है कि हमें इंतहाई एहतियात के साथ कुल्ली खूब करनी चाहिए। आप जानते हैं कि वज़ू में दिन में जितनी मरतबा आप वज़ू करें, खाना खाएं या ये कि सुबह शाम या रात को सोते वक्त वज़ू करके सोना, उसमें कुल्ली करना, ये वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसमें मिसवाक भी किया जाता है, कुल्ली भी की जाती है और पानी हल्क तक पहुँचाने के लिए गरारे किए जाते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है। अगर हम इस सुन्नत को सुन्नत समझकर अदा करते रहें तो हम इस मुसीबत से भी बच जाएंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने का अजर व सवाब भी यकीनन हमें मिलेगा। इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अतिबा बताते हैं। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को बहैसियत हमें मुबल्लिग, दीन के दाई और मुअल्लिम होने की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा की तलकीन करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ मुतवज्जे हों। हमें जब भी कुल्ली करें उसी वक्त अपने नाक भी साफ करें, नाक में पानी भी चढ़ाएं। इसी तरीके से सुबह को जैतून का इस्तेमाल करना, उसको पी लेना, उलमा कहते हैं, अतिबा कहते हैं कि शुगर के मरीज के लिए भी मुफीद है और ये इस मर्ज के लिए भी मुफीद है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह सवेरे पानी में शहद मिलाकर पीना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून है और ये आदाब नबवी में किताबों में ये बात मिलती है। तो अगर हम सुबह को पानी गर्म करके उसमें शहद मिलाकर, इसी तरीके से बल्कि थोड़ी सी कलवंजी डाल के, कि कलवंजी को भी शिफा कहा गया है, शहद को भी शिफा कहा गया है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मसनून अमल अगर सुबह गर्म करके चाय के तौर पर इस कहवे को इस्तेमाल किया जाए, इस वबा से हम सब मुसलमान बच सकते हैं। तो गोया वबाओं से बचने का सही तरीका
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है। ऐसे ही अगरचे बाज़ लोगों ने इसको ऐब समझा कि शायद मसाजिद से रोका जा रहा है, लेकिन हमारे उलमाए किराम, अल्लाह उन सब अकाबिर को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इसमें पूरी उम्मत की रहनुमाई की कि घरों से वुज़ू करके जाओ और सुन्नतें अदा करके जाओ और वापस आकर घर में सुन्नतें अदा करो। क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाया करो, यहाँ तिलावत भी किया करो और नमाजों की पाबंदी भी किया करो और यहाँ पर नवाफिल और सुनन भी अदा किया करो, फराइज मस्जिद में जाके अदा किया करो। आज कोरोना से बचने के लिए तो घर से वुजू करके और सुन्नतें पढ़ के जाते हैं। अगर इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सुन्नत समझकर ऐसा करना शुरू कर दें तो मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह सुन्नत के जिंदा करने का वो 100 शहीदों वाला अजर भी अता फरमाएंगे और इस मुसीबत से भी निजात अता फरमाएंगे। तो दोस्तों को, लोगों को और हर आलिम और खतीब अपने सामईन को कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन मसनून आमाल की तरगीब दे कि सुन्नत के मुताबिक हमें ये काम करना चाहिए। ऐसे ही आजकल हम बहुत अय्याश हो गए कि हमने मस्जिदों में कालीनें बिछा दी थी, नरम और गुदगुदी ऐसी चीजें कि जिन पर सजदा भी करो तो पता नहीं शायद कराहत ना होती हो। मैं अगरचे मुफ्ती नहीं और मैं इसमें फतवे की कोई बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारी कालीनें बड़ी नरम होती थी जिनके अंदर मुंह भी ढक छुप जाता था। लेकिन आज वो सारी कालीनें उठा दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन और हुजूर की सुन्नत के मुताबिक इस ज़मीन पर सजदा करना और मट्टी पर सहाबा किराम मस्जिद नबी में बगैर सफ़ों के बिछाए इस ज़मीन पर सजदा करते थे। आज अगर हम उसको अल्लाह के नबी की वो सुन्नत समझकर जिंदा करना शुरू कर दें तो यकीनन सुन्नत के इहया का अजर भी मिलेगा और अल्लाह इस मुसीबत से भी हमें निजात अता फरमाएंगे। इसी तरीके से बाकी जितने लवाजिमात हैं उन सब का हमें पूरा एहतियात करना है। अब मैं अगली बात आपसे अर्ज करता हूँ उलमाए किराम से कि रमज़ानुल मुबारक करीब आ रहा है। हमें अभी से उसकी तैयारी करनी है रमज़ानुल मुबारक की, और उसके लिए आज से 2-3 दिन पहले कराची में तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम का मुश्तरका इजलास हुआ और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बता दी हैं। मैं उस सिलसिले में गुजारिश करूँगा कि हर मस्जिद में तमाम दोस्त इस बात की कोशिश करें कि अवाइल रमज़ान से नहीं बल्कि अभी शाबान से शुरू कर दें तो 2-3 दोस्त 24-24 घंटों का मस्जिद में एतकाफ शुरू करें, जिससे मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल भी हो और उसमें तिलावत और इबादत भी हो और मस्जिदों को आबाद भी किया जाए और फिर नमाजों का एहतमाम में भी, सफ़ों की तरतीब में भी, सफ़ों के दरमियान वक्फे में भी जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम और अकाबिरीन उम्मत का फैसला है उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। और वो सब का मुश्तरका लाया अमल है, उसमें किसी मकतब फ़िक्र के किसी आलिम ने कोई इतराज़ नहीं किया, इसलिए उस पर मुझे कोई और कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मसाजिद में को आबाद करना, नमाजों का एहतमाम करना, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना, तस्बीहात मसनूना का एहतमाम करना, इसी तरीके से कलमा तय्यब, कलमा शहादत और इस्तिग़फ़ार ख़ास तौर पर 3 काम ऐसे हैं जो हम सबको करने चाहिए और पूरी उम्मत को इसकी तरगीब देनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ इस्तिग़फ़ार है, जिसके मुताल्लिक खुद कुरान पाक में कहा गया कि महबूब जो अल्लाह से तौबा करते हैं अल्लाह उनको भी अजाब नहीं देता, और महबूब जिनमें आप हैं अल्लाह इनको भी अजाब नहीं देते। तो एक तो तौबा करनी चाहिए, और अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे साफ कर दिया जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। दूसरा काम जो हमें सबसे ज्यादा अहम करना है वो दुआओं का एहतमाम है कि दुआएं सिर्फ पढ़नी नहीं, दुआएं मांगनी हैं, गिड़गिड़ाना है, रोना है, रोना ना आए तो रोने की सी कैफियत बनाए। और मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, मैं दुनिया के सामने कितना ही अच्छा हूँ लेकिन मैं अपने ऐब से खुद तो वाकिफ हूँ। तो हर आदमी अपने आप को, अपनी निदामत अपने आँखों में, अपने दिल में झांके और देखे और उसकी भी तौबा करे, और हम इज्तिमाई गुनाहों की भी तौबा करें।
कि आज 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और इस्लाम का आदिलाना निज़ाम पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस मकसद के लिए मुल्क बना था आज हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सके। हमारे अकाबिर उस दिन से लेकर आज तक उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अल्लाह हमारी जिंदगी में वो वक्त लाए कि हम ये बहार देखें कि ये मुल्क इस्लाम का किला बने, और जैसे ये इस्लाम के नाम पर है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अल्लाह इसको इस्लाम का आदिलाना निज़ाम वाली एक अजीम सल्तनत बना दे। उसके लिए भी हमें खूब इज्तिमाई दुआएं करनी चाहिए। और ये भी एक बड़ी अहम बात है कि जुर्म हम करते हैं इंसानों के साथ, ज्यादतियाँ, जुल्म, बदअहदी, सूद खोरी, हरामकारी, किसी का माल गसब करना, किसी का हक खा जाना, और तौबा करते हैं अल्लाह से। याद रखिए अल्लाह के साथ जो की हुई ज्यादतियाँ बंदों की हैं, उन गुनाहों से भी तौबा ज़रूरी है। इसलिए इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह का कौल है कि जहाँ भी तकवे को हुक्म है वहाँ दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जो अल्लाह से बंदे का ताल्लुक है उसको भी मजबूत रखे, और जो ताल्लुक बंदों के साथ है उसको भी साफ सुथरा रखे, उसके अंदर बंदों के साथ किसी किस्म की ज्यादती ना करे। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज़ जो इसमें बड़ी अहम है, जिनकी वजह से मुसीबतें और वबाएं टलती हैं, इस्तग़फ़ार की वजह से, दुआओं की वजह से, और तीसरी चीज़ सदक़ात की वजह से। सदका किसी किस्म का हो, सदकात वाजिबा हो, सदकात नाफिला हो। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इफ्तारी कराना, सहरी कराना, गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करना, इस काम में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। एक ये है कि हम अपनी जमातियों को इस हवाले से तरगीब दें। दूसरा, हम अपने अड़ोस पड़ोस में, दाएं बाएं, कुर्ब जवार में, हमसायों में इस पर नज़र डालें। और तीसरी, मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि अपने जुमा के खुतबों में और वैसे भी अपने मवाइज़ में और फेसबुकों पर अपने दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए ये झिझकने, शर्म की या ऐब की बात नहीं। सबसे कम तनख्वाहदार, सबसे कम लोग जिनको हम दिहाड़ीदार कहें, तो वो यकीनी बात है कि 500, 5000 में, 2000 में, 3000 में कोई कहीं मुअज्जिन है और कोई कहीं मुदर्रिस है और कोई कहीं इमाम है, और वो महल्ले के लोग उसकी खिदमत करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि मौलवी को शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम इन लोगों पर भी खुसूसी तवज्जो करें कि जो हमारे दीन के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। हमारी दौलतें और हमारा माल उन लोगों के लिए और उनके दीनी कामों के काम करने के लिए भी ख़ास तौर पर लगना चाहिए। और इस मौके पर मैं अहले सरबत दोस्तों से कहूँगा कि ये दीनी मदारिस आप लोगों के एहतियात से पूरी उम्मत में चलते हैं, और इस मौके पर जहाँ हम और बहुत सारे कामों में हाथ बटा रहे हैं, तो वहाँ पर इन इदारों का ख़ास तौर पर ताउन करना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को टाले और ईद के बाद ये दीनी मदारिस अपने उरूज और कमाल के साथ काम कर सकें। यहाँ मैं एक अहम बात और भी अर्ज करना चाहता हूँ। मुमकिन है आप मेरी इस बात को सियासी बात नहीं समझेंगे, और ये भी हो सकता है कि मेरी इस गुफ्तगू से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन बात कहने का हक है, इसलिए मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वेलफेयर तंजीमें, सोशल तंजीमें और खिदमत की तंजीमें मुख्तलिफ उन्वानात से काम कर रही हैं, जैसे हमारी अंसारुल इस्लाम और मुख्तलिफ हजरात के मुख्तलिफ और भी ग्रुप हैं। इस तरीके से मदारिस के लोग हैं, मुख्तलिफ और भी इदारों के लोग हैं। मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँगा कि शख्सी तौर पर किसी को किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपने एक फंड के नाम से टाइगर फोर्स के हवाले से एक ऐलान किया है, और उसमें एक कादियानी मुर्तद ने ये भी कहा कि हमने इतने करोड़ की मदद की है और जनाब वाला उसमें हम भी शरीक हो रहे हैं। मैं दीनी मदारिस के तलबा से, दीनी इदारों के उलमा से, तमाम तंजीमात मदारिस दीनिया के अकाबिरीन से, बल्कि विफाकुल मदारिस हो, तंजीमुल मदारिस हो या बाकी जितने इदारे हैं, इन सब के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि कोई शख्स हमें इस हवाले से ख़रीद नहीं सकता,
ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے حکم کے ہم پابند ہیں، لیکن میں ان سب دوستوں سے کہوں گا کہ آپ اس فورس کا حصہ بنیں تاکہ وہ دولت اور وہ مال، وہ رقم جو اس فنڈ میں آ رہی ہے، وہ کسی بد کردار، بے دین یا کسی مرتد اور ملحد کے ہاتھوں لگ کر غلط جگہ پر استعمال نہ ہو، جو اس کے صحیح مستحق ہیں ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ اور اس فورس کا حصہ بننے کے لیے آپ کو گوگل پر ریسرچ کرنا ہوگی، اور وہاں پر آپ جب جائیں گے تو وہاں پر سٹیزن پورٹل کے نام سے وہاں آپ کو ایک اپلیکیشن ملے گی، وہ وزیر اعظم ٹائیگر ریلیف کے نام سے وہ جو ہے رجسٹریشن ہوگی۔ اس میں آپ اپنا نام دیں گے، اپنا نمبر وغیرہ دیں گے اور اپنا شناختی کارڈ کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس کا حصہ بنیں اور ہم اس مال کو لے کر صحیح مستحق لوگوں پر ہم اس کو خرچ کرائیں۔ اگر ہم لوگ اس سے ایک طرف ہو جائیں گے اور ہم میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بے دین اور غلط لاکار لوگ اگر اس میں آ گئے تو یقیناً یہ مال غلط جگہوں پر خرچ ہوگا، جہاں اور کئی فنڈ پہلے ایسی جگہ پر چلے گئے جہاں سے آپ نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں نہ وہاں سے وہ واپس آتے ہیں۔ تو شاید یہ بھی ایسے نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وبا اور اس پریشانی میں یہ چیز صحیح لوگوں پر تقسیم ہو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے۔ میں نے جو کچھ کہا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جب بھی آپ کہیں گے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنے اس گروپ میں شریک کیا اور مجھے کہنے کو کہا۔ اللہ تبارک و تعالی پورے عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو فلاح، بہبود اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ خصوصاً اس وبا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کی ابھی شعبان المعظم سے تیاری شروع کہا ہے کہ شعبان کے رمضان کی نیت سے زکوٰۃ ادا کر دینا تاکہ مستحقین تک رقم رمضان اچھا گزار سکیں، تو اس کو رمضان میں خرچ کرنے کا 1 کے 70 والا اجر بھی ملے گا، اور پھر ان کی خدمت کا اجر بھی ملے گا۔ اور شعبان میں چونکہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ اور رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے، تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرب نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ ہم سب والی قول امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے کہ پورے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کو عبادت سے راضی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی مخلوق کو خدمت کے ساتھ راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔